ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دوگنا کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے یہ خبر سنی تو جوانے کا خون تھا جوش میں آ گیا۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ کی قریبی وزیر بیربل نے اکبر بادشاہ سے روانگی کے بارے میں پوچھا، لیکن اسی بار بادشاہ اکبر نے بیربل کو بھی اپنی منزل اور مقصد کے بارے میں نہیں بتایا اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ بیربل حیران تھا کہ آخر اکبر بادشاہ ایک عام آدمی کے بیس میں کیا کرنے کے لیے نکلا ہے۔ بیربل کو اکبر بادشاہ کے بارے میں ہر وقت فکر رہتی تھی، کیونکہ اکبر بادشاہ ایک نوجوان آدمی تھا اور کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اکبر بادشاہ کو دشمن اپنی چالوں سے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ آپ کے دربار میں بہت سارے ایسے وزیر تھے جو اکبر بادشاہ کے حکمت عملی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان، ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کی۔ اکبر بادشاہ نے چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر مہنگائی آسمان پر لے گئی۔ اکبر بادشاہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک اکبر بادشاہ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس گاہکوں کا کافی زیادہ رش تھا۔ اکبر بادشاہ نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا زیادہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ جب اکبر بادشاہ اس چھوٹی سی تاجر کے پاس پہنچا تو اکبر بادشاہ کو جاتی ہی معلوم ہو گیا اور یہ بات اکبر بادشاہ کے لیے بڑے حیرانی کی تھی کہ وہ تاجر جو چیزیں 100 سونے کے سکے تھی وہ 5 سونے کے سکوں میں دے رہا تھا، اور جو چیز 6 سونے کے سکے کی تھی وہ 3 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس سے رش ختم ہوا تو پوچھا، تاجر بھائی یہ بتاؤ کہ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہی ہو؟ یہ میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اکبر بادشاہ کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان شاہد، تم اس بازار میں نئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کے دام آئے دن دگنا کر دیتی ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اس سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ حضور، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بالکل
क्यों कम है? तो उस ताजिर ने अपनी दुकान बंद करती हुई कहा कि अगर तुमने इस राज मालूम करना है तो आज शाम को एक छोटी सी पहाड़ी पर मेरी झोंपड़ी है, आ जाना, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस ताजिर ने समझा कि शायद ये नौजवान पूछकर चला जाएगा, लेकिन अकबर बादशाह ने इसके जाने के बाद इसका पीछा करने लगा और दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसने इस ताजिर को अपनी आधी दामों में चीज़ें बेचने पर मजबूर कर दिया। अकबर बादशाह इस राज को जानने के लिए बड़ा बेताब हो रहा था और इसका पीछा कर रहा था, लेकिन ताजिर को नहीं पता था कि एक आम आदमी के बेस में बात करने वाला इसके साथ अकबर बादशाह था और अब वह इसका पीछा कर रहा है। ओह ताजिर जब पहाड़ी पर पहुंचा तो अपना कोई सामान झोंपड़ी के बाहर रखा और हाथ मुंह धोने के बाद झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब अकबर बादशाह ने उसकी झोंपड़ी और उसके घर को देखा तो दिल में सोचा कि लगता है कि ये नौजवान इस दुनिया में नहीं रहता, नहीं इसे अच्छी घर का लालच है, ना ही इसे अपनी कारोबार को बढ़ाने का लालच है। आखिर इस नौजवान की पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? अकबर बादशाह इसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे के सामने देखा कि वह नौजवान जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सामने एक बर्तन में खाना डांपा हुआ था। जैसे ही उस नौजवान ने बर्तन से खाना निकाला तो उसमें बुना हुआ मुर्गी और 3 रोटियां मौजूद थी। इस आदमी ने बड़ी ही शौक से ओह खाना खाया, खुदा का शुक्र अदा किया, नवाफिल अदा करके बाहर निकलने लगा तो इतने में अकबर बादशाह इसके सामने आया और कहा, भाई जब से मैंने आपके बात सुनी मुझे आपकी बात को दिल को जा लगी और मैं इसी ही राज से पर्दा उठाने के लिए आया हूँ। आप मुझे इस राज के बारे में बता दो। उस ताजिर ने अकबर बादशाह को झोंपड़ी के अंदर बैठाया और दूध का प्याला देती हुई अपनी कहानी सुनाने लगा। इस नौजवान ताजिर ने कहा कि जब से मैंने इस बाजार में अपनी दुकान की तो मैं भी दूसरे ताजिरों के तरह लालच में आ गया था और हर रोज़ मैं भी चीज़ों की कीमतें दोगुना कर देता और मैं अच्छा खासा सोना इकट्ठा कर चुका था। मेरे दिल में लालच बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन मैं अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था कि अचानक से एक आदमी जख्मी हालत में मेरी झोंपड़ी के आगे घोड़े पर रुक कर मैंने घोड़े के चलने की आवाज़ से बाहर आया, देखा कि एक नौजवान जख्मी था। मैंने उसकी घोड़ी से उतारा और अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। उसके टांग में एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह रहा था। मैंने उसके टांग से ओह लकड़ी का टुकड़ा निकाला, उसके जख्म को सुलाख गर्म करके दागा और उसको खाना खिलाने के बाद मैंने उसको बिस्तर सुला दिया और मैं बाहर खड़ा उसकी हिफाजत करता रहा, क्योंकि वह लिबास से बहुत अच्छे खासे खानदान का लगता था। मैंने सोचा कि कहीं इसके पीछे दुश्मन ना हो, इसलिए मैं सारी रात सर्दी की रात को बाहर खड़ा उसकी
हिफाजत करता रहा। सुबह सादिक हुई, मेरी आंखें लगी तो वो नौजवान मेरी उठने से पहले जा चुका था, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि तुमने मेरी मदद की, अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी जगह से मदद करेगा कि तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मजलूम की मदद करने का मौका दिया, इसका मतलब मेरे अल्लाह मुझसे कितना खुश है। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ अपने कारोबार के बारे में देखा कि मैं सारा दिन लोगों को लूटता हूँ, गरीबों को झड़कता हूँ और मजबूर लाचार लोगों से ज़्यादा दाम लेता हूँ, फिर मेरे दिल में अल्लाह का डर आया और उसी ही दिन से मैंने चीज़ों की कीमत इतनी ही कर दी जितनी में मैं ख़रीदता हूँ, और अगर कोई गरीब मेरे पास आ जाए तो मैं उनकी बग़ैर पैसों के मदद कर देता हूँ। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब तुम चीज़ें बग़ैर मुनाफा के हत्ता के नुकसान पर बेचते हो तो तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त और जो सामने तुम्हारे झोंपड़े के बाहर गोड़ी बंदी है, इसके चारे का बंदोबस्त तुम कहाँ से करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ख़जाना छुपा हुआ है? इस ताजिर ने कहा, नहीं हुजूर, नहीं। जिस दिन से मैंने बाज़ार में चीज़ों की कीमतें आधी कर दी, गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, उसी दिन से जब से मैं घर वापस लौटता हूँ और जैसे ही मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल होता हूँ, मेरी झोंपड़ी में मेरा खाना पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। मैं इससे अपना पेट भरता हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करके अल्लाह की इबादत करके सो जाता हूँ। बादशाह अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने ये मालूम नहीं क्या कि ओह खाना कौन ला कर आता है, कौन रख कर पीछे तुम्हारे चला जाता है? इस ताजिर ने कहा कि उस नौजवान ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम्हें समझ में भी नहीं लगेगी, और मैंने ये मदद अल्लाह ताला के तरफ से समझी और मैंने इससे अल्लाह ताला का एक राज समझा, और मैंने अल्लाह ताला के राज से पर्दा उठाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, इससे ऐसा चलते रहना चाहिए। इसलिए जो रिज़्क़ मुझे मिल जाता है मैं उसको खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता हूँ, और दिन को जो मैं अपना कारोबार करता हूँ मैं उसे फर्ज समझकर नवाता हूँ। अब ही बताए कि गरीबों और मजलूमों से लूटी हुई सोने का सिक्कों से ख़रीदा हुआ खाना अल्लाह ताला की भेजी हुई तोहफे के तौर पर खाने से क्या ज़्यादा लजीज हो सकता है? तो फिर मेरे जगह कोई और भी हो तो ओह ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा, ये उसी खाने को टुकरा कर जुल्म से कमाए गए पैसों से खाना खाएगा। ये कहती हुई अकबर बादशाह पहले तो मुस्कुराने लगा, फिर अकबर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ए नौजवान आदमी, उस रात जो आदमी घोड़े पर जख्मी हालत में तुम्हारे पास आया था, पता है ओह कौन था? इसने कहा कि मैं उसको नहीं जानता, मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं उससे पूछ सकूं। अकबर बादशाह ने कहा, ओह इस रात अकबर बादशाह था। ये सुनकर ओह ताजिर बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर आप कैसे जानते हैं कि ओह अकबर बादशाह था? इतने में फिर अकबर बादशाह ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हें मालूम है कि ओह खाना तुम्हारे लिए कौन भिजवाता है? फिर उस नौजवान ने कहा, मुझे नहीं पता। तो फिर अकबर बादशाह ने कहा कि ओह खाना भी अकबर बादशाह ही
तुम्हारे लिए भिजवाता है। ओह आदमी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और कहा कि ये दोनों बातें तुम्हें कैसे मालूम। इतने में अकबर बादशाह ने उससे कहा कि ये नौजवान जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी अकबर बादशाह है। ये सुनकर ओह ताजिर उसी वक्त घुटनों के बल अकबर बादशाह के सामने गिर गया और कहा कि मैं जितना अल्लाह का गुनहगार आदमी हूँ इतना ही अल्लाह ताला मुझ पर रहम करता जा रहा है। मुझे बदनसीब जैसी आदमी के सामने अकबर बादशाह खड़ा है और मुझे पता नहीं। अकबर बादशाह ने उसको अपने हाथों का सहारा देती हुई कहा कि जब तक तुम जैसे नौजवान मेरे सुल्तनत में मौजूद है मेरे रैयाह कभी भूख नहीं सोएगी। तुम अपना फर्ज निभाते रहो। अकबर बादशाह अपना फर्ज निभाता रहेगा। और कहते हैं कि बाद में उस नौजवान की वजह से बाकी बाजार के ताजिरों ने मजबूर होकर वही महंगी चीज़ें आधी कीमत पर बेचने पर मजबूर हो गई और इसके बाद इस बाज़ार में खुशहाली आ गई। और जहाँ लोग अकबर बादशाह को बद्दुआएं देते थे वही लोग अकबर बादशाह को उठते बैठते खाते पीते सोते वक्त दुआएं देते रहे।